With just a few days left for CBSE Board Exam 2025 to begin. So, today we will know about the dress code, permitted and banned items in CBSE Board Exam 10th and 12th 2025. CBSE has listed down important details about CBSE Board Exam 2025. Dress code item allowed for CBSE Board Exam 2025. Banned items inside CBSE exam halls and many more. Students wondering if it is compulsory for them to wear school uniform in CBSE Board Exam 2025. Which you should watch on the Perm Classes channel this video to watch and understand CBSE 10th exam 2025 dress code, CBSE 12th exam 2025 dress code, and other details to avoid last minute hassles. CBSE Board Exam 2025, the Central Board of Secondary Examination CBSE is all set to commence the CBSE 10th and 12th Board Exam 2025 from February 15th, 2025. According to the official CBSE diet sheet 2025, the board exam will be conducted until April 2025, 4th April 2025, and as per CBSE 10th date sheet 2025, class 10th exams will be conducted from February 15 to March 18, 2025. Meanwhile, class 12th CBSE exams 2025 will be conducted from February 15th to April 4, 2025 as per CBSE class 12th date sheet 2025. With just a few days left for CBSE exam 2025 to commence, we should know about the CBSE Board Exam 2025 class 10th and 12th exam dress code is more important for the smooth conduct of CBSE Board Exam 2025. The board has released an important notice on exam ethics. In the details about CBSE Board Exam 2025 dress code, items allowed for CBSE Board Exam 2025, banned items inside CBSE exam hall, and many more. Students wondering if it is compulsory for them to wear school uniform or any others. So, first of all, we will know all things about the permitted items for CBSE Board Exam 2025. Candidates are allowed to carry the following items only to the CBSE examination centers. First of all, CBSE 10th or 12th admit card 2025, school identity card for regular students. Regular students must carry their admit card and school identity card for validation and verification at the center. CBSE admit card 2025 and any government issued photo identity proof for private students are must. Private student must bring their admit card along with any government issued photo ID such as voter ID, Aadhaar card or passport for identity verification. Next is stationery items. Students can carry essential stationery in a transparent pouch including geometry or pencil box, blue or royal blue ink ball pen, gel pen, scale, writing pad or eraser. Analog watch. A simple analog watch is allowed. Digital watches, smart watches or any type of other electronic devices are not permitted.
Next is transparent water bottle. Candidates can carry a transparent water bottle for hydration, metro card, bus passes, and money. Some students are hesitant that they can carry metro card, bus passes, and money or not. Friends, candidates are allowed to bring a metro card, bus passes, or money for convenience. And now we will know about the banned items for CBSE 2025 exam. The following items which we are talking about are strictly prohibited at the examination centers for CBSE 10th and 12th exam 2025. Stationery and electronic items or devices prohibited. Textual material, whether printed or written, calculator, except for students with learning disabilities like dyscalculia, who are permitted to use a calculator as per CBSE circular number CBSE CEORD 2020. Pen drives, calculators, log tables cannot be carried at exam hall, but log tables will be provided by exam centers only. Electronic pens, scanners, etc. are banned. Next, communication devices, mobile phones, Bluetooth devices, earphones, microphones, pagers, health bands, smart watches, cameras, etc. are all prohibited. Other prohibited items like wallets, Googles, handbags, and pouches are not allowed. Any eatable items except for diabetic students who are permitted to carry food for medical reasons. Unfair means any items that could be used for unfair means such as unauthorized notes or gadgets will lead to punishment under the unfair means category. The use of the above and these items will result in some consequences as per the examination rules. Now we will know about the dress code for CBSE exam 2025. For regular students, candidates attending from schools are required to wear the school uniform on the exam day. This helps in easy to identify and maintain discipline. For private students should wear light clothes. It is advisable to choose comfortable attire, as students may need to spend several hours in the examination hall. Key reminders for examination, and these are adherence to guidelines. All candidates must strictly adhere to the guidelines regarding the permitted and banned items. Failure to comply may result in disqualification from the exam. Frisking and security checks ensure that you do not carry any restricted items to avoid delays or issues during the security checks at the exam center. Arrive early. It is advised to arrive at the examination centers well in advance to allow ample time for frisking and other entry procedures. By these guidelines, students can help ensure a smooth and fair CBSE board examination 2025 experience for all. Candidates are encouraged to double check their belongings before heading to the examination center and to avoid the main things. These are telling about you at the Pram Classes channel. Now we will know all things in Hindi also. दोस्तों CBSE बोर्ड एग्जाम जो कि कुछ ही दिनों में 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं
और दोस्तों आपको बता दें कि 10th और 12th दोनों के एग्जाम है वो 15 फरवरी में से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 फरवरी 2025 से। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं वो आपको अनुमति है ले जाने की, और कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको वर्जित है ले जाने, क्या होगा आपका ड्रेस कोड। इन सबको जानने के लिए सीरियसली आप अपना ध्यान इस वीडियो पर केंद्रित कीजिएगा। और दोस्तों अब जान लेते हैं जो चीजें ले जाने वाली है जिनकी अनुमति है वो। पहला है सीबीएसई 10th एडमिट कार्ड 2025 एंड सीबीएसई 12th एग्जाम एडमिट कार्ड और स्कूल पहचान पत्र जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें केंद्र पर सत्यापन के लिए अपना एडमिट कार्ड और स्कूल पहचान पत्र मतलब स्कूल का आईडी कार्ड ले जाना कंपलसरी है। अब आती है बात सीबीएसई एडमिट कार्ड 2025 और सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र जो कि प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको सरकार द्वारा कोई भी फोटो पहचान पत्र जैसे कि उसका आधार कार्ड है, जैसे कि उसका पासपोर्ट है, या उसका कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जो कि सरकार द्वारा मान्य वो ले जाना होगा। स्टेशनरी आइटम्स क्या है जो बच्चे ले जा सकते हैं। दोस्तों पहली बात तो यह है एक पारदर्शी पाउच ले जाना है आपको, ट्रांसपेरेंट पाउच आपके साथ रखना है और उसमें आपको जरूरी स्टेशनरी रखनी है। कौन कौन सी जरूरी स्टेशनरी है? ज्योमेट्री, एक पेंसिल बॉक्स जो कि आपका ट्रांसपेरेंट होगा, उसमें नीला या रॉयल ब्लू जो है आपका बॉल पॉइंट और जेल पेन आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्केल, लिखने वाला पेन जिसे हम स्टेक बोलते हैं, और इरेजर जिसे हम रबर बोलते हैं वो आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा एनालॉग घड़ी, एक साधारण जो घड़ी होती है सुइयों वाली घड़ी जिसे हम एनालॉग वॉच बोलते हैं वो आप ले जा सकते हैं। लेकिन डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच और किसी भी अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाने की आपको अनुमति नहीं है। दोस्तों इसके अलावा आप ले जा सकते हैं पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। दोस्तों उम्मीदवार जो कि एग्जाम दे रहा है स्टूडेंट, उसे पानी की कमी ना हो इसलिए वह एक ट्रांसपेरेंट बोतल साथ में ले जा सकता है। इसके अलावा बच्चों के सवालात ये होते हैं, उनके अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि क्या वो मेट्रो कार्ड, बस का पास या पैसा ले जा सकते हैं। तो दोस्तों हाँ, ये आप ले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जाएंगे कैसे अपने घर? जब आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा तो आप घर कैसे जाएंगे? तो ये आपको अनुमति दी जाती है। इसके अलावा वो चीजें जो कि प्रतिबंधित है, जो कि वर्जित है, वो कौन कौन सी जान लेते हैं दोस्तों। बहुत सी एक पूरी लिस्ट है जो कि आप ले जा नहीं सकते, लेकिन दोस्तों आपको जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक आपको कैसे पता लगेगा। चलिए 12th का मान लेते हैं, स्टूडेंट जान लेता है, लेकिन 10th का स्टूडेंट तो नया है, वो कैसे जाने? हालांकि आजकल बहुत स्मार्ट जनरेशन है, बट कुछ रूल्स उनको बताना जरूरी है। तो दोस्तों कौन सी चीजें हैं जो बैंड है या प्रतिबंधित है या वर्जित है? दोस्तों सबसे पहला है स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में देखते हैं तो आपको कोई भी पाठ्य सामग्री मतलब रीडिंग मटेरियल नहीं ले जाना है, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे वो प्रिंटेड हो। इसके अलावा कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, पेन ड्राइव नहीं ले जाना है, और आपको लॉग टेबल भी नहीं ले जानी है। तो आप पूछेंगे कि एग्जाम में लॉग टेबल कहां से मिलेगी? तो दोस्तों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसकी चिंता सेंटर करेगा और आपको वो लॉग टेबल प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक पेन और जो स्कैनर है ये दोनों नहीं ले जाने हैं। और यदि हम कम्युनिकेशन टूल्स देखते हैं कि क्या क्या नहीं ले जाने डिवाइसेस, तो वो जान लेते हैं। मोबाइल फोन एकदम वर्जित है, फोन ब्लूटूथ एकदम वर्जित है, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड और स्मार्ट वॉच और कैमरा ये टोटली बैंड है, आपको नहीं ले जाने हैं। दोस्तों इसके अलावा अदर थिंग्स कौन सी है, डिवाइसेस कौन से जो नहीं ले जा सकते, जो बैंड है? तो दोस्तों वो चीजें हैं, पर्स नहीं ले जाना है आपको गॉगल्स नहीं ले जाने हैं, आपको अपना हैंड बैग नहीं ले जाना है, और आपको पाउच जो ट्रांसपेरेंट है उसके अलावा आप नहीं ले जा सकते हैं। इनका ध्यान रखें। इसके अलावा
कोई भी खाद्य सामग्री नहीं ले जानी है। तो आप ये सोचेंगे कि यदि किसी को डायबिटिक पेशेंट है तो दोस्तों उनके लिए बैंड नहीं है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये वो ले जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें टेबलेट्स लेनी होती है। इसके अलावा अनुचित साधन यदि आप ले गए तो क्या होगा दोस्तों, कोई भी वस्तु जिसका अनुचित साधनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि अनाधिकृत नोट या गैजेट्स, तो उसे अनुचित साधन की श्रेणी में ले लिया जाता है और आप दंडित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको परीक्षा नियमों के अनुसार उपरोक्त इन वस्तुओं के उपयोग के गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अब बात आती है आपकी ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। सब कुछ जान लिया, पहन के क्या चाहे दोस्तों, ये सभी के दिमाग में होता है कि हमें एग्जाम के टाइम हमें यूनिफॉर्म पहन के जानी है या नहीं है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है वो क्या पहन के जाए। तो दोस्तों सीबीएसई 10th और 12th एग्जाम में जो उम्मीदवार, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फाइट कर रहे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए सबसे पहले आता है रेगुलर स्टूडेंट्स क्या पहने। तो दोस्तों स्कूल से आने वाले उम्मीदवार जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा के दिन स्कूल यूनिफॉर्म पहने, ये अनिवार्य है, क्योंकि इससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है और डिसिप्लिन भी बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा बात आती है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। चलिए रेगुलर स्टूडेंट्स तो यूनिफॉर्म से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स क्या पहने, तो दोस्तों वो हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि आरामदायक रहेगा, क्योंकि उन्हें 3 घंटे से ज्यादा का समय एग्जाम हॉल में बिताना है। इसके अलावा कुछ मुख्य बिंदु क्या है। पहला है आपको दिशा निर्देशों का पालन करना है। यू शुड फॉलो द डायरेक्शंस बाय सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। सभी अभ्यर्थियों को जो कि अनुमति प्राप्त चीजें हैं और वर्जित वस्तुओं के संबंध में डायरेक्शंस है, उनकी अनुपालना करनी है और स्ट्रिक्टली करनी है, नहीं तो आप पनिशमेंट के दायरे में आ जाएंगे। अनुपालन न करने पर परीक्षा से अयोग्य तक घोषित हो सकते हैं आपको। इसके अलावा तलाशी और सुरक्षा जांच, फ्रिस्किंग और सेफ्टी चेक। दोस्तों परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के दौरान देरी या समस्याओं से बचने के लिए आप खुद को सुनिश्चित करें कि आप कोई बैंड वस्तु तो नहीं ले जा रहे हैं जो आपको बैन हो। इसके अलावा एक चीज सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, जो हम अमूमन नहीं करते हैं, वो हमें करनी है, वह टाइम का मैनेज करना, और हमें एग्जाम से कुछ पहले ही पहुंचना है ताकि हम फ्रिस्किंग और सेफ्टी जो है वे उससे गुजर सके और हमें उसमें टाइम नहीं लगे और हमारा पेपर जो है हम समय पर स्टार्ट कर सके। दोस्तों इन दिशा निर्देशों का पालन करके छात्र सभी के लिए एक सुचारू और निष्पक्ष सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सुनिश्चित करने के लिए मदद कर सकते हैं। परीक्षा के दिन अनावश्यक तनाव से बचने के लिए स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले सामान की दोबारा जांच कर लेनी चाहिए, जिससे कि वह स्ट्रेस फ्री, हेजल फ्री एग्जाम दे सके। दोस्तों एक बार फिर से आपको बेस्ट विशेष फॉर योर एग्जाम। दोस्तों आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए। बट फ्रेंड्स once again you should keep in mind the rules and regulations and allowed and banned items for your CBSE board exam 2025 which has been communicated to you by Param Classes channel। दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय इसी चैनल पर एक नया टॉपिक सीबीएसई बोर्ड से लेकर, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स।